last lecture we discuss addition products of set and then introduce to relation. Okay, and then some types are relation we will see in last lecture. But some students is not having my video, so please I request to you watch my video and subscribe my channel. Any doubts then ping me. Yeah, write your comments box your doubts. Okay, yeah, otherwise you personally call me WhatsApp also. I give to my WhatsApp number also. Okay, so सगळ्यांनी व्हिडिओ बघा. Okay, so today we going on relation types remaining. Okay, then first types is 1-1 relation. 1-1 is relation is what? A set and B set is gives. One set is having 1, 2, 3, 4. A set is having element 1, 2, 3, 4. Okay, and B set is having 2, 3, 4, 5, 6. Are you see? Good. दिख रहा है सबको? Very good. Okay, then when you say this is a 1-1 relation, these two sets is having distinct, means those are different sets. See, those are different elements. You say 2, 2, 3, but it's differently totally. Not 1, 2, 3, 4 is having 1, 2, 3, 4. It's 2, 3, 4, 5, 6 is there. Okay, so distinct. And A set is assigned to B set is image. A ची image B मध्ये दिसते. Okay, A set is having image in B set. 1 image is 2, 2 image is 3, 3 image is 4, 4 image is 5. You say 6, doesn't matter. First set is assigned to second set. Okay, and distinctly and unique. One is assigned only 2, one is not assigned 3, one is not assigned 4, one is not assigned 5. Okay, म्हणजेच काय की A set मध्ये सगळे एलिमेंट्स हे डिस्टिंक्टली प्रेझेंट होतात. Then what you say? This is 1-1 relation. What you say? This is 1-1 relation. Are you getting me? These are the relation types. Second types, many ones. Means what? These two sets is again we write as well as C. Are you see? Okay? Are you see this? Okay? Then A set is 1, 2, 3, 4. And B set is also having 2, 3, 4, 5, 6. Okay? But we define many one. Means what? A set's elements is having many images in B set. A set is image in B set is many. Means 1 assigned 3, 3 assigned 5. Okay, 4 assigned 3. Means 1 assigned also 3, 4 assigned also 3. So otherwise we say 2 assigned 4 and 4 assigned 4 again. This is what you say many. Means A set is having elements with many images. 1 is having image 3, 2 is having image 4, 3 is having 5, 4 is having 3 also, 4 is having 4 also. Many. If 2 or more elements of A has same image in B. Okay? Are you getting? Means A set is having 2 or more images in B set. Means 1 is assigned 3 also, 2 is assigned 4 also, 3 assigned 5 also, 4 is assigned 3 also, 4 is assigned also 4. Are you getting? Many. 2 or more images is having in B set. Then what you say? Many one. Okay? Then next, third, onto relation. What? Onto relation. Onto relation is what? Those sets is having A and B. Okay? And B is having, are you see? See this picture clearly? Okay? Then A set is having -2, -1, 0, 1. Which element is having -2, -1, 0, 1. And B set is having 0, 1, 4. Okay? And then when you say this is onto relation, every element in B set is the image of some element of A. Means जे काही B set मध्ये element आहे त्यांची पण image A set मध्ये असणार आहे. Okay? Some element. सगळ्यांचीच नव्हे तर काही ठराविक याची images is having in A set. Okay? See, look at -2 is assigned 4. -2
-1 is assigned 1. 1 assigned is 1. Means 1 is having 3 images also. What? -1 and 1. Are you waiting? Are you waiting? And 0 is assigned 0. 0 is image is 0. Are you waiting? Get it? Good. Contour relation is what? See, I write in only condition. When you say this is relation, if every means A and B two non-empty sets, and then we say that this is the onto relation if every element of B is the image of some element of A. Okay, this is called what? Onto relation. Okay, and next into relation. Okay, into relation means what? Two sets are given. A set is given and B set is given. A set is what? -2, -1, 0, 1, 2. A set is having element -2, -1, 0, 1, 2. And B set is having 0, 1, 2, 3, 4. And then when you say this is the into relation, very simple. If there exists at least one element in B set which has no pre-image in A, मतलब ऑन्टो में हमने क्या बताया था कि B में जो B सेट है उसमें भी इमेज होगी किसकी? A सेट की सम इमेज होगी. ओके, बट इधर उल्टा है पूरा. क्या है? इनटू रिलेशन. इसमें क्या है? इफ देयर exists at least one element in B which has no pre-image, मतलब इसमें 0 की भी इमेज थी, 1 की भी इमेज थी, 4 की भी इमेज थी, बट यहाँ पे नॉट हैविंग 0 की इमेज है, 1 की इमेज है, 3 की इमेज है. नो, 3 की इमेज नहीं लिखी मैंने, 4 की इमेज ली है. आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? इनटू रिलेशन मीन्स व्हाट? A and B set is non-empty set, and this set is what you call on into relation. When if there exists at least one element in B which has no pre-image. तो image किसे कहते हैं? B set is the image and pre-image is A set. Are you getting me? Means 1 की इमेज जैसे 2 है, यहाँ पे देखो -2 की इमेज कितनी है? 4 है. 2 की भी इमेज कितनी है? 4 है. -1 की इमेज कितनी है? 1 है. 0 की 0 है. 1 की 1 है. ओके, बट इज नॉट हैविंग 3 and 2 is pre-image in A set. Then what you say? This is into relation. And relation किस पे डिपेंड रहता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पे. और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स किस पे डिपेंड रहता है? सेट पे. मतलब हमने सेट पढ़ा, सेट के टाइप्स पढ़े, सेट के ऑपरेशंस पढ़े. ओके, एंड देन लाइटर उस पर भी हमने पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी पढ़ा है हमने. ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई से? एंड देन लाइटर वी डिफाइन रिलेशन. रिलेशंस मीन्स आर यू गेटिंग? रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन क्या रहता है? जो हम कार्टेशियन ऑर्डर, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन-एम्प्टी सेट लिखते हैं, उसको ऑर्डर पेयर लिखते हैं, वहाँ पे हम कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं. मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x प्लस y इज इक्वल टू 4. मतलब कुछ तो कंडीशन डिफाइन करते हैं, कुछ तो रिलेशन डिफाइन करते हैं. देन व्हाट यू से? दिस इज द रिलेशन. एंड यू हैव एवरी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, मतलब रिलेशन किस पे डिपेंड रहता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पे. आर यू गेटिंग मी एवरीवन? गुड. देन नेक्स्ट रिमेनिंग टाइप्स ऑफ रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन आपने तो पढ़ा ही होगा. व्हाट आई से? एम्प्टी रिलेशन. तो हम एम्प्टी रिलेशन की थोड़ी सी रिविजन कर लेंगे. ओके, empty relation. Empty relation means what? Empty बोले तो empty, null, void set. Okay, so A set is gives 1, 2, 3. Okay, okay, and B set is having 3, 4. Simple. दो सेट लिए मैंने. कौन से? 1, 2, 3 and B set is gives 3, 4. Okay, and then relation हम लिखेंगे वहाँ पे very simple. X, Y such that
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या रिलेशन लिखा? सी, एक सेट लिया हमने, ए सेट 1 2 3, बी सेट अलग सा लिया 3 4, ओके, एंड देन उस पर रिलेशन डिफाइन किया। विच रिलेशन विल डिफाइन? एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखा। आर यू गेटिंग? सो पहले हम क्या लिखेंगे? उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी मैंने बोला रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग? सो व्हाट यू राइट? कार्टेशियन प्रोडक्ट। एवरीबॉडी नो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मीन्स व्हाट? पहले ए सेट और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, तो उसकी ऑर्डर पे राइट करनी है हमें। ओके, बी element is 3 4, and then what you write? Cartesian. 1 assigned to 3, 1 assigned to 4, 2 assigned to 3, 2 assigned 4, as well as 3 assigned 3, 3 assigned 4. अभी इसमें से हम रिलेशन राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? रिलेशन। ओके, उनका रिलेशन राइट करना है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि रिलेशन ऑर्डर पर राइट करनी है। विच कंडीशन? मैंने क्या कंडीशन दी है? एक्स प्लस वाई की सम क्या होनी चाहिए? 10। ओके, सो लेट्स सी कौन सी ऑर्डर पेयर है कि जो उन दो ऑर्डर पेयर, मतलब एक्स, इसे क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। ये सबको पता होना चाहिए, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा है। जो किसी को नहीं पता है तो ये आइकॉन दिया है, उस पर हम पढ़ लेंगे। ओके, पुराने जो मेरे वीडियो है वो आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, सी, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। एंड दिस इज 1 and 3 is what? x y ऑर्डर पेयर, एंड दिस इज एलिमेंट। व्हाट यू से? एलिमेंट। सब मैं सब थोड़ा सा रिवाइज करते हुए रिवाज। ओके, बार बार नहीं करूँगी अभी, क्योंकि हम पिछले का पढ़ेंगे तो भी अभी का समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1 and 3 की एडिशन कितनी होती है? 4। ये तो एग्जिस्ट होता है कि ऑर्डर पेयर? नहीं। एज वेल एज 1 and 4 5, इट्स नॉट एग्जिस्ट। 2 and 3 की एडिशन 5 इज नॉट एग्जिस्टिंग। 2 4 की एडिशन 6 इज नॉट एग्जिस्टिंग इन 10। 3 plus 3 6, 3 plus 4 कितना हुआ? 7। सो एनी रिलेशन इज देयर? No, it's empty. Are you getting what you say? Empty relation. सबको समझ में आया? What I say? Empty relation. Okay, बाद में अभी ये सेट इसे एग्जिस्ट कर रहा था, A and B दो सेट क्या कर रहे थे? ये रिलेशन को एग्जिस्ट कर रहे थे। ऐसा जरूरी है कि हर बार यही हो। हमने यहाँ पे 6 लिखा होता तो क्या लिखते हम? 6 लिखा होता तो सी, तो एग्जिस्ट हो जाता। अभी हम कंडीशन अलग से देंगे और एक कंडीशन देंगे R1 एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। सी, कंडीशन क्या ली मैंने? R1 की रिलेशन R1 क्या लिया मैंने? एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना लिया? 6 लिया। मतलब एक्स एंड वाई की एडिशन लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? 6। एक तो लेस भी होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। रिमेंबर? आर यू गेटिंग? वेरी गुड। देन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, मतलब एक्स प्लस वाई की सम लेस होनी चाहिए 6 से या 6 के बराबर होनी चाहिए। सो वी विल चेक कौन से ये रिलेशन कौन से के लिए ले रहे हैं हम? ए एंड बी कार्टेशियन के लिए। सो विल स्टार्ट। तो हम पढ़ सकते हैं, देखो एक्स प्लस वाई की एडिशन 6 के बराबर या 6 से कम, तो 1 and 3 की एडिशन कितनी होती है? 4 एग्जिस्ट हो रही है, क्योंकि लेस देन बोला है ना मैंने। कंडीशन क्या लिखी हमने यहाँ पे? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एज वेल एज 1 4 आएगा, 2 3 भी आएगा, 2 4 भी आएगा एंड 3 भी आएगा। बट 3 4 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि लेस देन है। तो ये क्या हुआ? रिलेशन।
ओके, तो लिसन एवरीवन, जब मैंने बी सेट में से 4 निकाल दिया तो कौन से सेट आएंगे, कार्टेशियन कौन सा आएगा, कार्टेशियन इनका। अभी देखो मैंने रिलेशन बनाया, बाद में मैंने क्या किया, बी सेट से एक एलिमेंट रिमूव किया। ओके, या अदरवाइज पूरा मैं बी सेट ही रिमूव कर दूं और बोलूं कि इनका कार्टेशियन लिखूं और ये एग्जिस्ट होगा, R1 के लिए होता है क्या, तो विल चेक। ओके, सी कार्टेशियन 1 1 1 2 1 3, पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। क्या किया मैंने, जस्ट रिलेशन राइट किया, उस पर कंडीशन राइट की, बाद में मैंने क्या किया, बी सेट रिमूव कर दिया और खाली मैंने ए सेट लिया और ये कंडीशन को अप्लाई करता है या नहीं हम देख रहे हैं अभी। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, तो क्या किया, 1 is 1, 1 is 2, 1 is 3, 2 is 1, 2 2 and 2 is 3, as well as 3 is 1, 3 is 2 and 3 3। सो हम एग्जिस्ट करेंगे, हो रहा है रिलेशन एग्जिस्टिंग, तो इस पे आर लिखेंगे, आर की कंडीशन। ओके, R1 की, सो व्हाट विल गेट इट, x plus y such that x plus y less than equal to 6। अभी देखो 1 and 1 is less than, is existing, पढ़ रहे हैं ना, x plus y less than equal to 6। ओके, मतलब 1 plus 1 की एडिशन कितनी हुई, 2 is less than 6, obviously is less than 6। 1 and 2 की एडिशन कितनी हुई, 3 is also existing as well as 1 3। तो चेक करके लेना, ये कंडीशन जो रिलेशन में कंडीशन दी है उसके हिसाब से हम कार्टेशियन और रिलेशन, कार्टेशियन से रिलेशन लिखते हैं। ओके, 2 1 एग्जिस्टिंग, 2 2 एग्जिस्टिंग, 2 3 एग्जिस्टिंग, 3 1 एग्जिस्टिंग, 3 2 एग्जिस्टिंग एंड लास्ट वन 3 3। तो ये R1 क्या आ रहा है, R1 इज नथिंग बट व्हाट, ए कार्टेशियन ए, मीन्स जब रिलेशन एंड कार्टेशियंस इक्वल आए तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहते हैं इसे हम, यूनिवर्सल रिलेशन। जब रिलेशन का सेट, रिलेशन का ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर पेयर बराबर हो, इक्वल हो, देन व्हाट यू से, दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। आर यू गेट इट एवरीवन, गुड, अच्छे से पढ़ लेना। देन नेक्स्ट, binary relation। Binary relation means what, a set is non-empty set and then this, when you call this is binary, when you call this is binary, a set is gives 1 2 3 and then a cartesian a, then we say this is binary। 1 is 1, 1 is 2, 1 is 3, 2 is 1, 2 2, 2 3 as well as 3 1, 3 2 as well as 3 3। Okay, what do you say, this is binary relation। And then we say a cartesian A is the subset of A set, then what you say, this is binary relation। Okay, are you ready? Then next type, reflexive relation। Reflexive relation, reflexive relation। These are importance for 11th 12th स्टूडेंट्स इन मैथ्स। ओके, जेई के लिए बहुत यूजफुल है, सीईटी के लिए, नाटा के लिए, जो नेशनल टेस्टिंग दे रहे हैं, मतलब जो अभी जेई अपीयर हो रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। रिलेशंस की कंसेप्ट उस पर डिपेंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ओके, सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
relation. Reflexive means mirror image. Sorry, reflexive means खुद से relation, खुद का relation. This is what reflexive relation means. A and B belongs to R. ये दोनों क्या है? Belongs to R. R is what? Real. Okay. So A related to B means A is related to, ये notation है relation का. हम कैसे रीड करते हैं? A is related to B. A is related to B. Okay. इसे हम ऐसे पढ़ते हैं. Okay. Reflexive. A is related A. A is related A. Then what you say? This is reflexive relation. Reflexive relation. मतलब खुद से रिलेशन होना चाहिए. जैसे हम बोलते हैं ना की प्राणी मात्रांवर प्रेम करा, झाडांवर प्रेम करा, झाडे लावा. पहिले आधी आपण काय केलं पाहिजे? स्वतःपासून सुरुवात केली पाहिजे ना. Itself. This is what? Reflexive relation. Okay? Means बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए. इसलिए पहले खुद से रिलेशन कैसे होता है ये पता होना चाहिए, तभी तो हम बॉन्डिंग कर सकते हैं ना. Are you ready? Good. This is reflexive relation. Then next types, symmetric. हम इनके एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं. Okay? So wait. Symmetric relation. Symmetric relation. Symmetric का मतलब mirror image means x related to y and y is related to x. Mirror. जैसे हम मिरर में देखते हैं ना, जब अभी यहाँ मेरा राइट हैंड साइड है तो मिरर में देखेंगे तो कहाँ पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड. मतलब वो क्या हुई? पोजीशन ऐसी थी तो ऐसी पोजीशन आ गई. आर यू रेडी? रिफ्लेक्शन. यू स्टडी इन फिजिक्स आल्सो. रिफ्लेक्शन. योर इमेज इन वाटर टैंक, वेल, रिवर, योर शैडो. आर यू रेडी? दिस इज रिफ्लेक्शन. सो symmetric means x related to y, y related to x. Very simple examples I will give. Ram is brother of Sham. Ram is brother of Sham. Okay. Are you see? Ram is brother of Sham. तो रिलेशन क्या है इसमें? ब्रदर. राम जब शाम का भाई हो सकता है तो श्याम also what? राम का भाई होगा. सीता और गीता as like. Are you ready? This is symmetric relation. बड़े some relation में होगा, mathematical expression में भी होगा. मैं भी general examples बता रही हूँ, but we will learn mathematical examples. Okay? So next, transitive relation. Which relation? Transitive relation. Transitive relations. Transitive means what? A related to B, B related to C. Then what you say? A related to C. What you say? A, B, C. 3 elements are in R. Okay. And then which condition is satisfied? A related to B. A element is related to B element. And B element is related to what? C. Okay. And then implies. This notation is what? Implies notation. Implies. A related to C. Means Shyam is a friend of Ram. Ram is friend of Suresh. What is the relation of Ram and Ram, Shyam and Suresh? Okay. So Ram is the friend of Shyam and Shyam is the friend of Suresh. What is the relation of Ram and Suresh?
दोज आर ऑल्सो फ्रेंड. फ्रेंड का फ्रेंड कौन होता है? फ्रेंड ही होता है ना. बट नॉट नेसेसरी इन ऑल कंडीशंस. मतलब रिलेशन क्या दिया है, वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, देन उस पर डिपेंड रहता है. दीज आर द reflexive relation, these are the symmetric relation, these are the transitive. जब ये तीनों रिलेशन एग्जिस्ट जिस स्टेटमेंट में होंगे, जिस कंडीशन पे होंगे, देन विच कंडीशन इज वी कॉल इक्विवेलेंस कंडीशन. क्या बोला मैंने फिर से कि जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों के तीनों एक साथ एग्जिस्ट होंगे दिए हुए मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे, एनी स्टेटमेंट, एनी कंडीशन, तब हम उन्हें क्या कहेंगे? These three conditions are existing, then we say this relation is equivalence relation. And mathematical is notation. ये आपने concurrent geometry में पढ़ा है 10th standard तक. Geometry you learn ना? Okay, are you ready? This notation, congruence, concurrent, similar, similarity, many types में इसे define किया हमने geometry में. Are you ready? So today we discuss relation types. अभी मैं उसके एग्जाम्पल ले लेती हूँ और बाद में हम functions इंट्रोड्यूस करेंगे. functions का मैं बता देती हूँ. function is a what special kind of relation. What? Function is a special kind of relation. Okay? मतलब जहाँ पे रिलेशन है वहाँ पे फंक्शन होगा. बट कैसे? एवरी function is relation, but it's not necessary. Every relation is not a function. Okay? So बाद में पढ़ेंगे. Just introduce किया मैंने, तब इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. एकदम सिंपल है. आपके पास तो बुक्स होंगी, बुक से ही ले रहे हो अपने. वेरी सिंपल है. एक्सरसाइज 1.2 पहले तो एकदम बेसिक है. बेसिक एग्जाम्पल से एकदम इजी है. आपने लास्ट टाइम भी पढ़े होंगे. if x minus 1 y plus 4 is equal to 1 to find the values of x and y. एकदम सिंपल एग्जाम्पल है. इट्स वेरी इजी. इफ x माइनस y, ऑर्डर पर में क्या लिया मैंने? इफ दिख रहा है. इफ x माइनस 1 y प्लस 4, फर्स्ट एलिमेंट इज x माइनस 1, x minus 1 and y plus 4 is equal to 1 2, and then what do you find out? Value of x and y. Very simple. Those are equal relation. Last lecture में हमने बताया, अभी नहीं बताया. Equal relation means what? Equal relation is what? Equal relation means those relations having same element. Then we say this is equal. And equivalent means number of elements is same. Then we say equivalent. Are you ready? हमने सेट में भी पढ़ा है. इट्स नॉर्मल. x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 राइट किया, एंड y प्लस 4 क्या राइट किया मैंने? 2 दिख रहा है. x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 राइट किया. ऑर्डर पेयर असाइनिंग इक्वल रिलेशन. x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, y प्लस 4 इज इक्वल टू 2. ओके, सो इसमें से x की वैल्यू कितनी आई? 2 आई. माइनस 1 इज गोइंग ऑन प्लस 1, 1 प्लस 1 2. Similarly, y plus 4 is equal to 2. Then 2 minus 4 is minus 2. Exactly. Then x and y values are 2 minus 2. Are you ready? Get it? Good. इसके भी एग्जाम्पल दूंगी मैं. नेक्स्ट अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का लेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था. See,
A is equal to A, B, C and B set is having, दिख रहा है, X, Y. So find A cartesian B, B cartesian A cartesian A and B cartesian B. एकदम सिंपल सा है, आपको अभी आएगा सबको. सी क्या दिया है, A set is given A B C. A set is having A B C elements and B set is having X Y elements. So find what you find, A Cartesian B. This notation is what, Cartesian. B Cartesian A and remember A Cartesian B is not equal to B Cartesian A. So किसी को लगता है A की जगह B, B की जगह A. Never, this is Cartesian products is there. ऑर्डर पैर पूरी उल्टी हो जाती है, मिरर इमेज आ जाती है, इसलिए इट्स नॉट इक्वल. ओके, एंड देन खुद से A Cartesian A, B Cartesian B. You learn, you take this exercise in your homework and please send me this answer in comment box. पहले के दो मैं कर देती हूँ, बाद के दोनों A Cartesian A और B Cartesian B आप खुद से कर लेना, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना या अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप कर देना. ओके, सी A Cartesian A is what, you know, Cartesian products. So first we write A Cartesian B. A set क्या है, A B C and B set is X Y. So we writing A X, A Y Cartesian. Similarly B Cartesian X, B Cartesian Y. और आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन, इसमें कितने हैं एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ए में 3 और नंबर ऑफ बी में कितने हैं 2, 3 2 जा 6. तो देखते हैं हम 6 बार लिखते हैं क्या, ये आपको पता ही होना चाहिए. वी लर्न नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी. नंबर ऑफ ए कितने 3, नंबर ऑफ बी 2 है और नंबर ऑफ ए कार्टेशियन कितने आते हैं वो हम देखते हैं. कितने आते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 6. आर यू गेट इट, ये हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में. ओके, नंबर ऑफ कार्टेशियन एलिमेंट्स. सो आर यू गेट इट, ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन क्या होगा, ए की जगह एक्स आएगा, एक्स की जगह ए आएगा, मतलब इसकी प्री इमेज एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी एक्स सी वाई सी इज नॉट इक्वल ए कार्टेशियन बी. आर यू गेट इट, तो ये तीनों आप कर लेना. ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल. ये एग्जांपल बढ़िया है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है और इजी है, सब इजी रहता है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत रहती है. प्रैक्टिस, यू नो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. ओके, सो रिमेंबर ऑल थिंग्स. And C set is gives 5 6 and then find A Cartesian B intersection C, A Cartesian B intersection A Cartesian C. Okay, and A Cartesian B union C and last A Cartesian B union A Cartesian C. पहले ये दो मैं कर देती हूँ, बाद के दो आप करना है. ओके, आई गिव टू our group also these examples. So see, first क्या करना है, see A set is having 1 2 3 4 elements, B set is having 4 5 6 elements, C set is having 5 6 element, and then we find out A Cartesian. A Cartesian is what, B intersection C. Second, A Cartesian B intersection, this notation is having intersection. Another A Cartesian C. Third, A Cartesian B union C
and fourth is A cartesian B union A cartesian C. Are you get it? So पहले हमें क्या करना है, A cartesian B intersection C निकालना है. तो पहले हम B intersection C निकालेंगे. You learn सेट में पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो मेरे पुराने वीडियो देख लो, पढ़ जाओगे. ओके, पढ़ लेना और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. तो पहले हम क्या निकालेंगे, B intersection C. B intersection C means what? This common element. What? Intersection is common element. A set is having and B set is having. Then which common element is there? B and C. B and C, not A. B and C. 4, 5, 6, 5, 6. Which element is common? 5, 6. Are you ready? Intersection means what? Common elements. Okay. Then बाद में A cartesian B intersection C. So ये B intersection किससे हमें cartesian करना है? A से, A set से. So how will write? 1 to 5, 1 assign 5, 1 assign 6, 2 assign 5, 2 assign 6, 3 assign 3 5, 3 6, 4 5, 4 6. Are you ready? And अभी मैंने बोला number of A, how many elements? 4, and B intersection is how many? 2. 4 to the 8. See, 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी मैंने बोला ना, number of A into number of B is equal to number of A intersection B. You will get it. How many order pairs? And then we'll check cross verify. Are you getting me? So बाकी के तीनों आपको करना है. पहले क्या करेंगे, A cartesian B निकालेंगे, बाद में A cartesian C निकालेंगे और उनका इंटरसेक्शन जो कॉमन उनमें वही हम लिखेंगे, वही अपना आंसर होगा. एंड देन A cartesian in bracket B union C. First will define B union C, मतलब B and C set is having, and then union means what? 4 5 6 5 6. and जो common elements है we will write it only one time. You learn in set already. मतलब 4 5 6 is the B union C. Okay, and then later A cartesian B union C will write as like. Then fourth is A cartesian B. फिर से आपने लिया हुआ है सेकेंड में A cartesian B and A cartesian C, उनका यूनियन करना है. जो हमने सेकेंड में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लिया, तो इसमें हमें क्या करना है, यूनियन टुगेदर. आर यू रेडी? गुड. नेक्स्ट एग्जांपल एकदम इजी है, सब इजी है, बढ़िया है. और ये अभी तो मैंने एकदम बेसिक लिया. आप बोलेंगे तो क्या मैडम, ये तो हमने पढ़ा है, हमें पता है, पता तो सबको रहता है, पर एग्जाम के वक्त क्या भूल हो जाता है सब. ओके, नेक्स्ट डोमेन एंड रेंज. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हाउ विल गेट टू डोमेन फॉर रिलेशन, हाउ टू गेट रेंज फॉर रिलेशन. सो डोमेन एंड रेंज का एक एग्जांपल लेंगे हम. So write the domain and range of given relation. Okay, जो given relation है, then we find domain and range.
तो पहले बता दूँ मैं भी, डोमेन एंड रेंज किसे कहते हैं रिलेशन में, जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स राइट करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म राइट करते हैं, ए बी एक्स वाई such that x belongs to a and y belongs to b। तो यहाँ पे इसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं और इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, एक्स वाई एलिमेंट्स। ओके, एंड जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है ऑर्डर पेयर का, एक्स इज फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी, उसे हम कहते हैं डोमेन। उसे क्या कहते हैं हम? डोमेन। जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में ऑर्डर पेयर हम जो राइट करते हैं उसमें से पहला जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है, जो ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट, मतलब एक ही नहीं, जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे उसमें से जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स है उसे हम कहते हैं डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। क्या? डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। एंड जो सेकेंड एलिमेंट रहता है उसे हम कहते हैं रेंज। व्हाट इज इट? दिस इज व्हाट वी कॉल रेंज। एंड नेक्स्ट कोडोमेन। कोडोमेन इज व्हाट? बी सेट। जो सेकेंड सेट रहता है उसे कहते हैं हम, सेकेंड जो सेट रहता है पूरा का पूरा, जिसका कोई ऑर्डर पेयर होता है या नहीं होता है, जो बच्चे कुछ जो पूरा का पूरा सेट रहता है उसे हम कहते हैं कोडोमेन। एंड एवरी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स रेंज इज सबसेट, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और इसी को हम कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं इनटू रिलेशन। रेंज एंड कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। देन यूज, दिस इज वेरी सिंपल ट्रिक्स, शॉर्टकट। मतलब एमसीक्यू में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको पूछा रेंज कोडोमेन इन रिलेशंस, तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब कोडोमेन, जो कोडोमेन रहता है उसका ही सब पार्ट रहता है रेंज, पूरा का पूरा रहता है, सब पार्ट्स। ओके, सबसेट वी लर्न इन सेट। एंड जब रेंज एंड कोडोमेन इक्वल आ जाती है तो उसे हम कहते हैं ऑन्टो रिलेशन। और इसे ऑन्टो रिलेशन। आर यू गेटिंग? गुड। सो फर्स्ट एग्जांपल में करके बताती हूँ। इसमें से, और ये जो एग्जांपल दिए हैं वो कौन से फॉर्म्स में दिए हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इनको। क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। अभी ये रिलेशन को मैं R1 रिलेशन बता देती हूँ नाम, R1 कंडीशन। ओके, कंडीशन क्या दी है? ए बी, ए बिलोंग्स टू एन, एन इज व्हाट? नेचुरल नंबर। एंड आपको पता ही है सब नंबर्स, ऑल नंबर्स इज एग्जिस्टिंग रियल नंबर्स, रियल नंबर लाइन पे सब एग्जिस्ट हो जाते हैं। ओके, एंड ए लेस देन 6, ए क्या है? लेस देन 6। एंड व्हाट इज बी? 4। ओके, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 या 1 2 3, 1 2 3 4। ओके, तो a less than 6 means which one is a? A is what? 1 2 3 4 5। ओके, a सेट, a क्या होगा इसमें? a 1 2 3 4 5। एंड व्हाट इज b? 4। अब इनका हम रिलेशन राइट करेंगे। ओके, ये मैंने सिर्फ a सेट एंड b सेट इज राइटिंग। एंड देन रिलेशन, रिलेशन 1 4 1 4, then 2 4 3 4 4 4 5 4। This is the relation. Are you ready? Order pair, A belongs to n, A less than 6 and B is 4. So what do you write? A set is 1 2 3 4 5, less than 6 means 1 2 3 4 5, and B is 4. Then order pair, 1 assign 4, 2 assign 4, 3 assign 4, 4 assign 4, 5 assign 4. And then first component, then what you write? Domain of R1. तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से है? 1 2 3 4 5, these are the domain. And range is
4 and codomain also 4. Are you getting? यहाँ पे मैंने कोडोमेन में पूछा था. I will write domain is first element in order pair. This is called domain. Okay, and second element in order pair, this is range, and second set is having codomain. Are you ready? समझ में आया? Domain, range and codomain of relation. ये पे अपना relation अभी खत्म हुआ है. So we'll give to example. I will give in our group. And any doubts, then ask me. Thank you. And then next lecture we define. नए से हम पढ़ने वाले नया टॉपिक. And it's very important topic. Function. Function is what? Special kind of relation. और relation किस पे डिपेंड था? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पे. और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इज डिपेंड ऑन सेट. ये सब ऐसे चेन है, लिंक है. सो प्लीज सब पढ़ के आइए. कोई डाउट होगा तो जरूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद.